السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا سبق ہے ہمارا تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی آتا ہے ٹھہرنا، رکنے کی جگہ۔ اس سبق میں قرآن مجید میں ہم لوگ اگر کہیں پر بھی پڑھیں گے اور آخری حرف پر وقف کریں گے تو کیسے وقف کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو چلیے ناظرین، سبق شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے، ایسے گول نشان کو عید کہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹا سا گول نشان بنا ہوا ہے، چھوٹا سا گول اسی کو عید کہتے ہیں۔ ایسے گول نشان کو عید کہتے ہیں۔ نمبر 1، زبر زیر پیش۔ زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کے سانس توڑے۔ نمبر 1، زبر زیر پیش، زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ نمبر 2، زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدہ۔ یہاں پر دال کے اوپر 2 زبر ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدہ۔ نمبر 3، گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ ہا بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ یہاں پر جاریتن سے جاریہ، یہاں پر وقف کریں گے کیونکہ یہ گول تا ہے، تو یہاں پر جاریتن نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے، تن کو نکال دیں گے، صرف ہا کو پڑھیں گے، جاریتن سے جاریہ۔ تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پر دیکھیے میم کے نیچے زیر ہے، زبر زیر پیش، زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو کیا کریں گے، آخری حرف پر جزم دے کے سانس توڑیں گے۔ یہاں پر بھی آخری حرف پر جزم دے کے سانس توڑیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر بھی دیکھیے میم کے نیچے زیر ہے، یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے، آخری حرف پر جزم دے کے سانس توڑیں گے۔ زبر زیر پیش، زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کے سانس توڑیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر زبر ہے، یہاں پر بھی آخری حرف پر جزم دے کے سانس توڑیں گے۔ زبر زیر پیش، زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کے سانس توڑیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم لوگ اس کا ہجا کیسے کریں گے، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، یا کاف زبر کا، ایاک، اس طرح سے ہجا کریں گے۔ یہاں پر تشدید آ رہا ہے، حمزہ کے بعد یا کے اوپر تشدید ہے، اس لیے بلکہ اس کو ملا کر پڑھیں گے، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ای یا، ایسے کر کے ہجا کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ یہاں پر بھی دیکھیے نون کے اوپر پیش ہے، یہاں پر بھی آخری حرف پر جزم دے کے سانس توڑیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ یہاں پر دیکھیے قلقلہ کریں گے، حرف قلقلہ میں سے کیا آ رہا ہے، دال آ رہا ہے، حرف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، حرف قلقلہ میں سے دال آ رہا ہے تو ہم لوگ قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ،
यहाँ पर देखिए दाल के ऊपर दो पेश है, दो पेश पर वक़्फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़म दे के सांस तोड़ेंगे। यहाँ पर भी आखिरी हर्फ पर जज़म दे के सांस तोड़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद इन्ना मअल उसरि युसरा। यहाँ पर गुन्ना करेंगे, नून के ऊपर तशदीद है इसलिए गुन्ना करेंगे। नून और मीम पर तशदीद हो तो क्या होगा, गुन्ना होगा। तो यहाँ पर भी गुन्ना करके पढ़ेंगे इन्ना मअल उसरि युसरा। यहाँ पर देखिए नाज़रीन, रॉ के ऊपर दो ज़बर है, दो ज़बर पर वक़्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखिए दो ज़बर है, दो ज़बर पर वक़्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। इन्ना मअल उसरि युसरा फ़ीहा ऐनुन जारिया, फ़ीहा ऐनुन जारिया। यहाँ पर देखिए तनवीन के बाद क्या है, जीम है, हुर्फ़ इक़्फ़ा में से है। हुर्फ़ इक़्फ़ा 15 है, ता सा जीम दाल। हुर्फ़ इक़्फ़ा 15 आप लोग पढ़ चुके हैं नाज़रीन पिछली वीडियो में, तख्ती नंबर 10 में। और हुर्फ़ इक़्फ़ा की आवाज़ कैसे होती है, नाक में छुपा कर पढ़ते हैं हम लोग, एक अलिफ की मिक़दार होती है। यहाँ पर हुर्फ़ इक़्फ़ा में से जीम आ रहा है तो हम लोग नाक में थोड़ी देर आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे। ऐनुन जारिया, फ़ीहा ऐनुन जारिया। यहाँ पर देखिए ता के ऊपर दो पेश है लेकिन ये गोल ता है। गोल ता पर वक़्फ़ करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर तनवीन को नहीं पढ़ेंगे बल्कि हा को पढ़ेंगे। जैसे जारियतुन से जारिया हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके नाज़रीन। यहाँ देखिए गोल ता पर वक़्फ़ करना हो तो वो हाय साकिना हा बन जाती, जैसे जारियतुन से जारिया। बल्कि तून को नहीं पढ़ेंगे, हा को पढ़ेंगे। अगर ऐसा वाला ता हो तो हम लोग क्या करेंगे, ता को नहीं पढ़ेंगे बल्कि हा को पढ़ेंगे, जैसे जारियतुन से जारिया। इसी तरह यहाँ पर भी वैसे ही है, जारियतुन से जारिया, बल्कि ता को नहीं पढ़ेंगे, हा को पढ़ेंगे। अगर ऐसा वाला ता हो तो, अगर वक़्फ़ करना हो तो तून को नहीं पढ़ेंगे, तून को निकाल देंगे बल्कि हा को पढ़ेंगे। जारियतुन से जारिया, फ़ीहा ऐनुन जारिया, तुस्क़ा, मोटा करके आवाज़ को पढ़ेंगे, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया। यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, ये क्या है, नून साकिन के बाद आइन आ रहा है। यहाँ पर हुर्फ़ हल्क़ी में से आइन आ रहा है। हुर्फ़ हल्क़ी कितने, 6, हमज़ा हा, आइन हा, गैन ख़ा। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं तख्ती नंबर 9 में। जब अगर और हुर्फ़ हल्क़ी में से आइन आ रहा है और हुर्फ़ हल्क़ी 6 है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन ख़ा। यहाँ पर नून को बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसी को इजहार कहते हैं। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, यहाँ भी तनवीन के बाद हमज़ा आ रहा है, हुर्फ़ हल्क़ी में से है, नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया। यहाँ पर भी देखिए ता के नीचे दो ज़ेर है, ये भी गोल ता है। गोल ता पर वक़्फ़ करना हो तो वो हाय साकिना हा बन जाती है, बल्कि तीन को नहीं पढ़ेंगे, हा को पढ़ेंगे। यहाँ पर वक़्फ़ करना हो तो आनिया, तीन से आनिया। फ़ी तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, ला तस्मअु फ़ीहा लाग़िया, ला तस्मअु फ़ीहा लाग़िया। यहाँ पर भी देखिए ता के ऊपर दो ज़बर है लेकिन ये गोल ता है। अगर ऐसा वाला ता हो तो हम लोग आखिरी में ता दो ज़बर तन जो लिखा हुआ है, हम लोग तन को नहीं पढ़ेंगे बल्कि तन को निकाल देंगे, सिर्फ हा को पढ़ेंगे। लाग़िया, तन से लाग़िया ऐसे पढ़ेंगे। ला तस्मअु फ़ीहा लाग़िया, हम लोग तन को निकाल दें। क्यों तन को निकालें, क्योंकि ये गोल ता है। और गोल ता पर वक़्फ़ करना हो तो हम लोग तन को निकाल कर सिर्फ हा को पढ़ा जाता है। लाग़िया, तन से लाग़िया, ला तस्मअु फ़ीहा लाग़िया।
नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सबक समझ में आ गया होगा। तख्ती नंबर 17 वक़्फ़ करने के कायदे। वक़्फ़ के माना आता है ठहरना, रुकने की जगह। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप लोगों को ये सबक समझ में आ गया होगा। नाज़रीन, इसको आप अच्छे से याद करें, मुकम्मल याद करें और ज़बानी याद करें तो अच्छा होगा। इसका कायदा याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे सबक पढ़ने में कहीं काम आएगा। नाज़रीन, अगर आप हमारी वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिल जाए और कोई भी सबक ना छूटे। जब तक लिए हमें अपने दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।